بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک داتا گنجبخش، زندگیوں کو بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والا، شور و پکار کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، ہر قسم کی قربانی اور عبادات کے لائق تو اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ بے شمار انگنت ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، اشیاء کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر مرشد امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ سامعین محترم، اسلام ایک معتدل دین ہے جو باقی ادیان کا بھی احترام کرتا ہے، حالانکہ وہ تحریف شدہ ہے، اور باقی ادیان کے ماننے والوں کا بھی احترام ہے۔ اسلام میں افراط و تفریق نہیں ہے، یہ وہ واحد دین ہے کہ جو دوسرے ادیان کے مذہبی لوگوں کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے اور خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ حالت جنگ میں بھی اسلام نے دشمن کے مذہبی رہنماؤں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ احترام کا حکم دیا ہے، اور یہود و نصارہ کی طرح افراط و تفریق کا شکار ہونے سے ہمارا دین ہمیں روکتا ہے۔ یہود و نصارہ کی ہلاکت اور بربادی کا سب سے بڑا سبب جو تھا اس دن ہٹگر میں اللہ اور اس کے دین، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے منہ موڑنا، دین میں رسول کی ذات میں غلو کرنا، حد سے بڑھا دینا، یہ ساری چیزیں تھی جن کی وجہ سے یہود و نصارہ پر لعنت کی گئی اور وہ اللہ کی نظروں میں تباہ و برباد ہو گئے۔ جب دین کے کسی حکم میں حتیٰ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو اور مبالغہ آرائی سے اسلام نے سختی سے روکا ہے، تو پھر میرے بھائیوں، اہل بیت نظام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں غلو عقیدے کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ وہاں غیر اللہ کی محبت کو اللہ کی محبت اور عبادات پر غالب کرنے کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلامی نقطۂ نظر کو جاننا بہت ضروری ہے۔
کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم نے عقیدہ کہاں سے اخذ کرنا ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اسلام کا عقیدہ ہم نے کہاں سے اخذ کرنا ہے. کیا قصے کہانیوں سے؟ نہیں. کیا پہلے لوگوں کے واقعات سے؟ نہیں. کیا اپنی خواہشات سے؟ نہیں. بلکہ اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ ہمیں کہاں سے سچا اور سوچا ملے گا؟ وہ قرآن سے ملے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملے گا. شخصیات جتنی بھی عظیم جلیل القدر ہو، عظیم الشان ہو، ان کے بارے میں افراط و تفریط سے ہٹ کر اعتدال کی طرف اپنانا ہی ایک مسلمان کا شیوا ہے. ہر بات، واقعہ یا سانحے کو اسی زاویہ نظر سے تعصب کی عینت سے دیکھنے اور سوچنے کی بجائے تمام رجحانات کو ایک طرف رکھتے ہوئے حقیقت پسندانہ اور اسلامی اصولوں کے مطابق اس کو دیکھنا چاہیے. اس سے بہت سارے مسائل کو بہت حل ہوتے نظر آئے. صحابہ اہل بیت کی محبت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ. یہ ذہن میں رکھیے. تمہیدی جو کلمات ہیں ان کو ذہن میں رکھیے تاکہ میں اپنی بات کا آغاز کر سکوں. ان میں فرق کرنا یا ان میں سے کسی ایک کو برا بھلا کہنا، اس کو اس کی تنقید کرنا، توہین کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف. الفاظ میں غور رہے. میں بڑے جانچ کے اور بڑی پڑتال کے ساتھ میں الفاظ کو استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ صحیح عقیدے کا مسئلہ ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مسئلہ ہے. اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کا مسئلہ ہے. دنیا میں اپنے آپ کو اہل ایمان میں شامل کرنے کا مسئلہ ہے. صحابہ اہل بیت ہیں کون؟ آئیے ذرا اس مختصر وقت میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مناقب کیا ہیں. جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل جنہ کے فضائل بیان کیے تھے. اہل ایمان بیت کی محبت ایمان کا لازمی جز ہے. خیر القرون سے قیامت تک ہر صاحب ایمان کے دل میں اہل بیت کی محبت جزء ایمان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت بھی ایمان کے لیے معیار اور ترازو ہے. اسی لیے اللہ خالق و کائنات نے قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تب تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا. لیکن اگر تم نے صحابہ جیسا ایمان نہ لے کے آئے تو پھر تمہارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہذا صحابہ کو اللہ نے ایک ترازو کے طور پہ پیش کر دیا ہے، اللہ نے ایک نمونے کے طور پہ پیش کر دیا ہے اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے اصحاب وہ منتخب کیے ہیں جو پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ معزز اور بہترین. اسی لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اہل بیت کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. یعنی اہل بیت سے محبت رکھو، حسن سلوک رکھو. سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین نے فرمایا اہل بیت کی شان کو اللہ کے نبی نے اجاگر کیا. کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جو چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے وہ حسین سے محبت کر لے. کہیں پہ فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما من یحبہما. اللہ اکبر. کہیں فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب. تو کہیں فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا مقام ہے، ان کے فضائل ہیں. اور ان کے فضائل کتنے ہیں، محبت اہل بیت کیا ہے، صحابہ نے عملی طور پہ ہمیں کر کے دکھائی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سیر اعلام النبلاء کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے موقع پہ سیدنا حسین تشریف فرما ہے. سیدنا حسین کے پاؤں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، جسے کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ حاضر کے گواہ سیدنا ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
जिनसे हमारा आधा दीन मर भी है। वो अबू हुरैरा आगे बढ़ते हैं, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे अनवर की तरफ देखते हैं और अपने कपड़ों से उनकी चूड़ी को साफ करते हैं। यह है सहाबा की मोहब्बत अहले बैत के साथ, और ये मुत्तफिका फैसला है। हमेशा हमारा मौक़िफ़ साफ और वाज़ेह रहा है। सैयदना इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस तरह फरमाया था कि जिसने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, उसकी शहादत पे मदद की या राजी भी हुआ इसके पर, तो वो फरमाते हैं फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, उससे अल्लाह की, उसके फरिश्तों की, तमाम लोगों की लानत हो जो कत्ले हुसैन पर, शहादत हुसैन पर आमादा हुआ, जिसने उनको शहीद किया, जिसने उनकी मदद की, जो उससे राजी हुआ। तीनों के बारे में इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं उसमें अल्लाह की लानत हो, लोगों की लानत हो और फरिश्तों की लानत हो। और फिर आखिरी जुमला बड़ा प्यारा फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु सल्मा वला अदला, अल्लाह ताला उसकी कोई भी नफली या फर्जी इबादत कबूल नहीं। ये हमारा वाजिब है। अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस का ये बिल्कुल वाजिब है। वाक़े करबला की जुज़ियात में पढ़ना और एक मखसूस अंदाज में उसको बयान करना, ये अहले सुन्नत की आदत नहीं, ये उनका तरीका नहीं। जब मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है तो फिर मकसद है किसी भी मुअय्यन शख्स को लानत नहीं की जा सकती जब तक कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लानत नहीं। हाँ, जो उस फेल का मुर्तकिब है उस पे लानत, जिसने ये काम किया उस पे, ये हमारा मौक़िफ़। इसी तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी अपनी जगह पे मोहतरम है, उनकी शान में भी गुस्ताखी का सोचा भी नहीं जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इहफ़ज़ूनी फ़ी अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहो, मेरे सहाबा के बारे में मेरा ख्याल रखो। इब्न माजा की रवायत है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, सहीह बुखारी की रवायत है कि मेरे सहाबा के बारे में कोई भी नाज़ेबा अल्फाज़ इस्तेमाल न। अल्लाह के नबी ने तो सारे मसाइल को हल कर दिया, वाज़ेह तौर पे बयान फरमा दिया। अबू बरा बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने ये फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल अंसारु ला युहिब्बुहुम इल्ला मुमिन वला युबग़िदुहुम इल्ला मुनाफिकुन, अंसार ऐसे हैं कि जिनसे मोहब्बत अहले ईमान का वतीरा है और उनसे बुग़्ज़ रखना मुनाफिक का काम है। फमन अहब्बहुम अहब्बहुल्लाह, जो उनसे मोहब्बत रखता है अल्लाह उनसे मोहब्बत करे। वमन अबग़ज़हुम अबग़ज़हुल्लाह, और उनसे बुग़्ज़ रखता है अल्लाह उनसे। सहीह बुखारी की रवायत है। दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन को अपनी रज़ा के, अपनी रज़ामंदी के, खुश होने के सर्टिफिकेट अता फरमा दिए और दुनिया में भी जन्नत की खुशखबरियां सुना दी। और याद रखिए, अंबिया के बाद के मुकाम सिर्फ और सिर्फ सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान में इरशाद फरमाता है, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अ'द्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। सूरत तौबा निकलाई, वो लोग जिन्होंने ईमान लाने में सबकत की, वो महाजिर सहाबा, वो अंसार सहाबा, वो लोग जिन्होंने उनकी आसान तरीके से इत्तिबा की, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार किए हैं जिसके नीचे नहरें चल रही हैं। अल्लाह को अल्लाह, फिर अल्लाह फरमाता है हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी वहां पे गुजरेगी। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, अल्लाह कहता है ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। अरे जिसको अल्लाह कामयाब करार दे रहा है उसको दुनिया का इंसान कैसे कह सकता है कि वो नाकाम हो गए? जिसको अल्लाह खुशी की खुशखबरी सुना रहा है, जन्नत की खुशखबरियां सुना रहा है, वो नाकाम कैसे हो सकते हैं? जिनके नीचे नहरें चल रही होंगी, जो जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह फरमा रहा है। दूसरी जगह मेरे अल्लाह फरमाता है, उलाइका हिज़्बुल्लाह,
अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। ये अल्लाह की जमात है और अल्लाह की जमात भी कामयाब होने वाली। तीसरी जगह पे अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल फाइज़ून, यही अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। यही पे अल्लाह ने तो हद ही कर दी, फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। अगर दुनिया में कोई सच्चे मोमिन देखते हैं तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन की जमात। कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग कामयाब होने वाले, यही लोग मुत्तकी, यही लोग परहेजगार, यही लोग दुनिया आखिरत में कामयाब। इसीलिए किसी ने अपनी जुबान में बड़े ही तड़प कर ये अल्फाज अदा किए, मैं अक्सर पढ़ता हूँ तजल्ला चेहरे आते पग से मुर्दा उजाला नूर सी सीमा गुमती वजूदा, जलवा नूर सी सीमा गुमती वजूदा, उजाला ला इलाहा इल्ला हुदा, वजीफा फज़्कुरू वश्कुरूदा, जिस्म विच जोर भरिया चाहे दूदा, अखां विच नीर वले अबूदी दूदा, भरोसा फकत इकला तक न दूदा। सहाबा का अपना मकाम, अहले बैत का अपना मकाम, असहाबे रसूल की उनका अपना मकाम, इन दोनों के मकाम को समझना और तस्लीम करना जरूरी है। और उनमें से किसी की शान में तनकीद करना ये अपने ईमान से हाथ धोने के मुताबिक। इसीलिए सीधा रास्ता ये है, जन्नती रास्ता ये है कि हम सहाबा और अहले बैत से मुकम्मल प्यार का इजहार करें। सहाबा भी जन्नती, अहले बैत भी जन्नती, उनके हिस्से में जो नेकियां आई वो किसी और के हिस्से में नहीं आ सकती। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे इरशाद फरमाया था, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा मत करो, मेरे सहाबा के बारे में जो गलत अल्फाज इस्तेमाल न करो, क्योंकि अगर कोई शख्स और पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे तो मेरे सहाबा के ईमान का, उनकी शान का, उनके सवाब का मुकाबला नहीं कर सकता। आपस में कितना प्यार और मोहब्बत करने वाले, आपस में कितने नरम दिल हैं कि इकबाल को तरफ के कहना पड़ा तो हल्का इशारा को परेशान की तरह नरम रस में आपको बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हाँ ये फौलाद है मोमिन, इसीलिए तो उनकी बातें आज तक हैं, क़यामत तक रहेगी। अल्लाह को अल्लाह, सहाबा वाले बैत ने अल्लाह की मोहब्बत से सरशार होकर अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपने माल कुर्बान कर दिए, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अल्लाह के रास्ते में अपनी हर एक चीज कुर्बान कर दी। समझते हैं ये सौदा महंगा नहीं है, ये ऐसा वसफ है कि इस वसफ में कोई उनका मुकाबला ही नहीं कर सकता। किसी अहले दिल ने तड़प कर ऐलान किया, वो कहता है ओ ना दितिया ने जाना नाले माल दिते ने, सहाबा दितिया ने जाना नाले माल दिते ने, अहले बैत दितिया ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने, आका दे इशारियां ते कुर्बान हो गए, उन्हां लई ते जन्नतां दे ऐलान हो गए। घर बार नाले बीवी बाल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। कम हबशी देख लो जरा नहीं लोलिया, हबशी सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हबशी देख लो जरा नहीं लोलिया, बोलिया ते देखते भी हौली सी बोलिया, बिने सानू हौसले बिलाल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। सफरां दे विच जिन्ने मोढियां ते उठाया है, मुसीबा में डंग मारे यार नहीं जगाया है। अज भी ओ आका जी दे, अज भी ओ पत्नी जी दे नाल सुते ने, ताइयों रब ने भी
रुतबे कमाल दिखने। अल्लाह अल्लाह, इतने आला शान वाले सहाबा वाले बैठ की मोहब्बत, बड़ी ही मिसाली मोहब्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अल्लाह, सहाबा से कितना प्यार करें, सहाबा के बारे में कितना उनके दिल में मोहब्बत है। कसम खाकर इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, जिसके हाथ में मेरी जान है। लकराबत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन अन असिला मिन कराबती। सहीह बुखारी की रवायत कहते हैं कि अपने कराबतदारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करना मुझे अपने कराबतदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदारों के साथ उसने सुलूक करना मुझे अपने कराबतदारों के साथ सिला रहमी करने से ज्यादा। इतनी मोहब्बत है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से, उनके अहले बैत से, उनकी कराबतदारी से। और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ख्वाहिश करते हैं जमीन पे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान आसमान से उतार दे, वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो कीजिए, एक जुमला कहना चाहता हूँ, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसा मुकाम दिया है, कैसा मुकाम दिया है, इतना आला मुकाम है, इतना बेहतरीन मुकाम है, इतना खूबसूरत मुकाम है। अल्लाह को अल्लाह, इधर आसमान पे जमीन पे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अल्फाज कहते हैं, अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, रसूल मुकर्रम को मशवरा देते हैं, उधर अल्लाह कुरान बना के नाज़िल फरमा देता है। इतना बड़ा मकाम है, आज तक किसी को ये मकाम न मिल सका, पहली उम्मतों में भी किसी को ये मकाम न मिल सका। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था, लौ काना बादी नबी लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद किसी ने नबी बन के आना होगा तो उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम, पता चला कि अब्दुल्ला इब्न उबई फौत हो गया, मुनाफिक, सबको पता। मैं आखिर में जुमला कहना चाहूंगा, आपकी पूरी तवज्जो चाहूंगा। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक है, रईसुल मुनाफिकीन है, मुनाफिकों का सरदार है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को भी पता है, सहाबा को भी पता है। कई मौकों पे सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल हुक्म दीजिए इसकी गर्दन न उड़ा दी जाए। कई मौकों पे उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए इस मुनाफिक की गर्दन न उड़ा दी। फरमाया नहीं, लोग कहेंगे कि मोहम्मद अपने असहाब को कत्ल कर रहा है, उनको तो नहीं पता कि इसकी दिली कैफियत क्या है। अल्लाह अल्लाह, वही मुनाफिक रईसुल मुनाफिकीन जब फौत होता है उस वक्त हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा सच्चा मुसलमान है, सहाबी रसूल है, अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, आके कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे बाप का जनाजा पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तारीफ़े कलब के लिए निकले, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे अल्लाह के रसूल इसका जनाजा ना पढ़ाइए। ये मुनाफिक था, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मैं जुमला कहना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ये मुनाफिक था, इसका जनाजा ना पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नहीं उमर, मुझे अल्लाह की तरफ से मना नहीं किया गया, लिहाजा मैं इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। अल्लाह के नबी, ये मुनाफिक है, इस्लाम का दुश्मन है, हर मौके पे इसने डसा है, हर मौके पे इसने मुखालफत की है। अल्लाह के रसूल लोगों को भड़काता है, इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर नहीं, मुझे इजाजत नहीं है, मुझे अभी तक मना नहीं किया गया, मैं इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाके कब्र पे खड़े हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अपना दुआ पे दहन दिया, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, अपना दुआ पे दहन भी लगाया, दुआ भी की, अपना कुत्ता तक उतार के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्न उबई को कहना किया। और उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला बहुत बार इंतजार कर रहे, बहुत बार कह रहे अल्लाह के रसूल इसका जनाजा न पढ़ाइए, इसके ऊपर दुआ न कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर, अगर मुझे पता होता ना कि 70 मरतबा से ज्यादा भी दुआ करने से इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी तो मैं मोहम्मद इसके लिए 70 मरतबा से ज्यादा भी दुआ करूं। ये अल्लाह के रसूल का प्यार है, ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है लोगों से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे लोग बख्शे जाएं, लोग अल्लाह की जन्नत में चले जाएं।
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इधर जनाजा पढ़ा के फारिग हुए, तवज्जो चाहता हूँ मैं, पूरी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल रखिए। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल ने क्या किया, अपनी कमीज उतार के अब्दुल्लाह बिन उबई को लगा दिया, अपना लुआ में देहन लगा दिया। जहाँ पे अल्लाह के रसूल का लुआ लगा वहां पे शिफा ही शिफा है, वहां पे निजात ही निजात है। अल्लाह के रसूल के जिस्म से टच हुआ कपड़ा इसके ऊपर लग गया, उसके लिए जन्नत है। लेकिन अल्लाह जब तक ना चाहे कुछ हो सकता नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कोशिश करनी, इसके बावजूद अल्लाह क्या फरमाता है, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके लिए चाहे बख्शिश की दुआ मांगे या ना मांगे, अगर आप इनके लिए 70 मरतबा बख्शिश की दुआ मांगे, मैंने इनको माफ नहीं करना, क्योंकि ये मुनाफिक है, इस्लाम का दुश्मन है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह नहीं मानता। आज हम कहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं वही बात क्या है, नहीं मेरा अल्लाह जब तक ना चाहे उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए किसी ने तरफ के ऐलान किया तो कहता है, मुनाफिक दा जनाजा पढ़ाया नबी ने, खलासी न पाई उस काफिर शकी ने, फैसला आके सुनाया वही ने, ये खुदा जिसको पकड़े छुड़ा को नहीं सकता, जिसको अल्लाह पकड़ने में आए तो दुनिया की कोई ताकत बता नहीं सकती, चाहे खुद रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह ने फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बात की लाज रखी, कुरान बना के नाजिल कर दिया, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा। ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद किसी मुनाफिक के जनाजा नहीं पढ़ाना, न उसके लिए दुआ करनी है। मेरे भाइयों, में एक जुमला कहना चाहता हूँ आखिर में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को दिलों की हालत का पता था। अगर सहाबा में कोई नफ्स होता, अल्लाह ने जिस तरह अब्दुल्लाह बिन उबई के जनाजे के बाद ये पाबंदी लगा दी थी कि मुनाफिक पे जनाजा नहीं पढ़ाना, तो फिर बाकी सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम के अल्लाह के रसूल ने जनाजे भी पढ़ाए, अल्लाह के रसूल शामिल भी हुए। अल्लाह को पता है कौन मुनाफिक है, अल्लाह को पता है कौन सच्चा मुसलमान है। इसलिए तो अल्लाह कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, उलाइका हुमुल मुमिनून, उलाइका हुमुल फाइज़ून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। मेरे भाई तवज्जो कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारे उम्दे इरशाद फरमा के जो कुछ कामयाबी की नबी दे दी सब सुना दी। सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान अल्लाह पे राजी हो जाए। अल्लाह को राजी करना तो मुश्किल नहीं है, अल्लाह तो राजी एक मिनट में हो जाता है। अल्लाह तो राजी इस तरीके से हो जाता है कि जैसे ही इंसान अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो गए, नादम हो गए, एक आंसू बहाता है ना, एक मक्खी के सर के बराबर भी उसका आंसू अगर जमीन पर बाद में गिरता, अल्लाह उसके गुनाहों को पहले माफ। अल्लाह तो इतना गफूर रहीम है, अल्लाह तो इतनी मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह तो इतना प्यार करने वाला है। लेकिन मेरे भाइयों, इंसान अल्लाह में राजी हो जाए ये बहुत बड़ी सादत की बात है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर के लिए वो असहाब चुने जिनके अंदर ये सारी खसूसियात बदरजाए खत्म मौजूद थी। इसीलिए तो फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। अब बताइए, जो अल्लाह दिलों के हाल जानता है वो किसी मुनाफिक से राजी हो सकता है? वो किसी ऐसे शख्स से राजी हो सकता है कि जिसका ईमान ही कामिल हो? ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। जब अल्लाह राजी है तो फिर हम नाराज होने वाले कौन होते हैं? जब अल्लाह तारीफ कर रहा है हम उनकी तनकीद करने वाले कौन होते हैं? मेरे भाइयों, अपने ईमान की फिक्र कीजिए। सहाबा अहले बैत से मोहब्बत ईमान है, लिहाजा हमें चाहिए हम सहाबा अहले बैत से उस तरह मोहब्बत करें जिस तरह के हक है, जिस तरह के कुरान ने हमें बताया है, फिर हमारा ईमान मुकम्मल होगा। वरना याद रख लीजिए, हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि हम सहाबा अहले बैत से उसी तरह मोहब्बत न करें जिस तरह की हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, सहाबा और अहले बैत से सही मानों में मोहब्बत नसीब फरमाए, और जो हमारे ईमान के अंदर कमी आई है अल्लाह उसको दूर फरमाए, और ऐसी तमाम बातों से, ऐसे तमाम प्रोपेगेंडे से अल्लाह हमें महफूज फरमाए जो सहाबा और अहले बैत के बारे में किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा और अहले बैत के नक्शे कदम पर चलाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।